Republic takes you to the Kargil, Dras and the Batalik sectors where the Pakistani infiltrators had occupied the heights, and it was one of the toughest challenges for the Indian Army to get those heights back from the Pakistani infiltrator. It all started on the 3rd of May, and for 2 months, 3 weeks and 2 days, a fight took place between the Pakistani regulars and the infiltrators who managed to get onto the heights, taking the advantage of the winters. But then was the Operation Vijay that was launched by the Indian Army. One of the toughest operations till date any army has fought, as it was not on the ground but thousands and thousands of feet on the height. On the other side, it was the Indian Air Force that was conducting its Operation Safed Sagar, and the Indian Navy that was carrying out the Operation Talwar. How the eastern and the western fleet of the Indian Navy that was moving to block the Pakistan on the Arabian side so that the Pakistan supplies can be cut off. The Indian Air Force did the airstrikes, though remaining inside the Indian territory. And it was the Indian Army that was on a spree to recapture those heights. July 26, 1999, Kargil. This date changed India's military history as the Indian Armed Forces defeated Pakistan and kept its territorial integrity, sovereignty intact. But the victory came with a hefty cost. The cost that our 527 braveheart Jawans paid by sacrificing their lives for the nation. We bring to you the inside story of the Kargil war that destroyed Pakistan's nefarious plans to capture those icy heights. Exactly 25 years ago, India changed what the nefarious plan of the Pakistan was. India occupied those heights that were never an easy task, and it was always the man behind the machine that actually made the difference. Today, from the Kargil War Memorial, we will be speaking to the brave hearts of the Kargil War, those who ensured that the India is at the forefront. I am joined by Subedar Meher Singh, who is the one of those who led from the front and is an awardee for the Braveheart, and other is the Naib Subedar Keval Kumar with me. They both are from the 13th Jackrif, and they have led this war from the front. They are from the unit of Captain Vikram Batra, and we'll be speaking to them how it was in 1999 when the war broke out. सबसे पहले साहब आपसे बात करूंगा 1999 में जब जंग की शुरुआत हुई, आप कहाँ थे, कहाँ से आपको यहाँ पर आदेश मिला आने का? हम ऑपरेशन से पहले CICT सोपर के इलाके में थे, जो कि काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के इलाके से जाना जाता है। 6 जून 1999 को हम CICT से और घुमरी में पहुँचे। वहाँ पर 12 तारीख को ही हम यहाँ पे द्रास अटैक हेडक्वार्टर में पहुँचे, और यहाँ पर फिर हमें टोलोलिंग पे टू राजपुताना राइफल को रिलीव करने का आदेश दिया गया। उसके बाद हमारी बटालियन को हम कॉम्प्लेक्स राउकिनावा और पॉइंट 540 पर करने का आदेश दिया गया। चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी इस बटालियन के लिए। 13 जैक्रिफ कश्मीर घाटी में आतंक विरोधी अभियानों से सीधा द्रास पहुंच चुकी थी। द्रास पहुंचने के बाद कितनी कठिनाइयां इन्हें यहां पर आई, वो बात करेंगे नायब सूबेदार केवल जी से। नायब साहब, आप ये बताइए किस तरह की तैयारियां जो हैं आपकी थी, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर था यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे को जो दिक्कत थी वो थी क्लाइमेट की, और जो पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ दुश्मन ऊपर से पत्थर भी डाल रहा था, वो भी हमारे को नुकसान दे रहा था। तो इसलिए इधर हमारे को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करा। ऑक्सीजन की कमी थी,
पर इसके बावजूद भी हमारी बटालियन ने, और इसमें .5140 के ऊपर 20 जून 99 को हमारी 2 कंपनी थी, एक ब्रेवो कंपनी और डेल्टा कंपनी। डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे कैप्टन विक्रम बत्रा साहब, जिनकी आज के दिन ही शहादत हुई थी 4875 के ऊपर। आज ये वाला दिन हमारे लिए बहुत जो गर्व वाला वो दिन है, और हमें दुख भी है कि हमने एक ऐसे वीर को खोया है जो आज के सैनिकों के लिए वो था रोल मॉडल था। रोल मॉडल था। सर आपसे जानना चाहूँगा सूबेदार साहब, आप क्योंकि डेल्टा कंपनी में थे, वो कंपनी जिसको लीड जो है कैप्टन विक्रम बत्रा कर रहे थे, एक इतनी चुनौतीपूर्ण चौकी जो जब आपने हासिल की तो उसके बाद किस तरह से आगे ऑपरेशंस को अंजाम दिया, क्योंकि कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, दुश्मन था, दुश्मन ऊंचाइयों पे भी था, किस तरह से तैयारियाँ थी? यहाँ पे ये जो हमें पहले जो है तैयारी का हमें 1 सप्ताह का क्लाइमेटेशन किया, जिसके दौरान हमने 6 दिन पहाड़ी अप डाउन किया। उसके बाद जैसे ही फिर हम यहाँ पे द्रास अटैक हेडक्वार्टर में पहुँचे तो यहाँ पर हमने टोलोली जो है बेस जो है तो राजदीप को बदली किया। वहाँ पे हमने फिर 19 जून सुबह हमने .5140 पर चढ़ना स्टार्ट किया। तो पूरी रात चलने के पश्चात सुबह हमने जो है दुर्गे माता का नारा पुकारते हुए .5140 को अपने कब्जे में लिया, और वहाँ पे बत्रा साहब ने सक्सेस सिग्नल दिया था, ये दिल मांगे मोर। तब आप साथ थे? बिल्कुल साहब साथ में थे। साहब मैं लीडिंग में था और साहब मेरे साथ ही थे, और हमने जब फतेह हासिल किया तो उसके बाद तुरंत सक्सेस सिग्नल दिया कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल बाईके जोशी साहब को, ये दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर, ये सिग्नल यहीं से दिया गया था उस वक्त जब पहली फतेह जो है हासिल की थी। फतेह के बाद सर जब घर पहुँचे तो क्या माहौल था, क्योंकि 26 जुलाई का वो दिन हो चुका था जिसकी आज हम रजत जयंती मना रहे हैं। घर पे किस तरह से स्वागत हुआ, क्या माहौल था, क्योंकि आप जो हैं आपको सम्मानित भी किया गया सेना मेडल से, जो है जिस शौर्य का आपने जो है प्रदर्शन किया। हमारे जितने भी सैनिक जो लड़ाई के बाद गए थे उनका अपने अपने गांव में बहुत जो धूमधाम से उनका स्वागत किया गया, और उनके परिवारों की जो खुशी थी उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि उनके घर का सदस्य जो लड़ाई जो जीत के आया, जो फतेह हासिल करके आया, तो वो मैं अपने जो जुबान से बयान नहीं कर सकता हूँ। और हमारे जो भी सैनिक लड़ाई के बाद गए उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। धूमधाम से स्वागत किया गया। आपसे सर जानना चाहूँगा, जिस तरह से 25 साल का समय बीत गया, जब वो यादें एक बार फिर अतीत में आप देखते हैं तो क्या याद आता है? हाँ, याद वही पल आ जाता है जब हम 99 में यहाँ पे इंडक्ट हुए थे, और वही समय अभी आज के ही दिन जो है मेरे कॉमेडी कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा साहब की शहादत हुई थी। हमें वैसे दुख है और गर्व है कि उन्होंने जो है जो नाम कमाया, और ये आज के युवा सैनिक के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर जो अपना उदाहरण पेश करके गए हैं, और जो आज के दिन साहब की शहादत हुई थी। So this is the Subedar Meher Singh Veer Chakra and Sena Medal Naib Subedar Keval Kumar, who are from the 13th JACRIF, the unit of the Captain Vikram Batra, and these are the bravehearts who led from the front. These are the bravehearts who ensured that it is the Indian Army that gets those heights back, because it was never an easy task to get the heights back. It is the valor and the josh of these brave hearts that ensured that India occupies those heights that are occupied by the Pakistani regulars as well as the intruders. But the josh that they carried, and also the Dil Mange More success signal that was given by Captain Vikram Batra to the then commanding officer and retired Lieutenant General Y.K. Joshi, that they have occupied the heights, and now it's the time to head towards the next point where Captain Vikram Batra attained the martyrdom. The 1999 Kargil War was the brainchild of the then Pakistani Army Chief General Parvez Musharraf. Pakistan's aim to cut off Ladakh from Jammu and Kashmir and capture the mountain ranges. But the Indian Army started Operation Vijay on May 3, 1999 to uproot the Pakistani regulars from the Indian soil and proved its mettle. Major game changer in the war was the Bofors gun that gave an edge to the Indian armed forces in the battlefield. The
The Bofors had the capacity to pulverize the enemy from kilometers within a time span of 14 seconds to a volley of fire, which helped Indian Army to push back Pakistan. Peace is prevailing in Dras since then, when the Indian Armed Forces reclaimed the Tiger Hill and Tololing and other features. There was a lot of fire. Now we've discovered a lot of ammunition, which you can see here. This is the 12.7 millimeter air defense machine gun ammunition. Muhammad Amin, a localite from Kargil, shares his first-hand account of the war and what he witnessed in Dras town. Amin also mentions how everything has become normal since 1999 after Army's reclamation of the Tiger Hill. और आप 1999 में जब ये जंग हुई तब आप कहाँ थे, कैसे आपको चीज़ों का पता चला? सर, जहाँ तक 99 की वार की बात है तो मैं क्योंकि द्रास से रहने वाला हूँ, मैं यहाँ गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास में, तो मैं पोस्टेड था। तो सबसे पहला जो हमारा गांव जहाँ वार मेमोरियल है जिसको बिम्बट कहते हैं, वहाँ पे हम राशन स्टोर पे लोग बैठे हुए थे, तो ऊपर तोलोलिंग साइड में कुछ फायरिंग की आवाज़ आई, क्योंकि बिफोर 99 लोगों को ये फायरिंग वायरिंग का जंग का कोई कंसेप्ट खासकर हमारी जनरेशन में तो कभी था भी नहीं। तो हमने सोचा शायद इनकी कोई प्रैक्टिस हो रही होगी जैसे होता है, तो आवाज़ें सुना। बट बाद में पता चला कि भाई वहाँ कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं, फिर हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट्स, बाकी फौजी मूवमेंट्स हो गया। तो बाद में फिर उसके बाद जब हम स्कूल में थे, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल वहीं द्रास टाउन में ही है मेन मार्केट में, तो अचानक जो है फायरिंग उसके अपोजिट जो हमारा गांव है बिरस वगैरह, वहाँ पे फायरिंग होना शुरू हो गई। अब्रप्टली शुरू में तो 5-10 गोले लगने लगे ऊपर पहाड़ी इलाके में। उसके बाद पता चला कि भाई ये तो पार से पाकिस्तान की साइड से शायद फायरिंग हो रहा है। तब तक लोग इसको अलग एंगल से ले रहे थे, तो फिर चलते चलते ये इतना फायरिंग यहाँ पे शुरू हुआ। कब की बात है, किस महीने की बात हो गई है? मई जून की बात है। पूरे टाउन में गोले बरसने शुरू हो गए पाकिस्तान के साइड से, और हमारी इंडियन आर्मी ने भी उसकी लिटरेशन करके, खासकर मेराज जो 2000 मेराज जो है वो यहीं से ही फायर करती थी, रात को आके भी फायरिंग शुरू हो गया। तब जाके यहाँ सिर्फ नौजवान लोग जो जवान थे या गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉइज़ थे, उनको यहाँ पे इजाज़त रहा कि वो इंडियन आर्मी के साथ रहे, उनके साथ काम करे, उनके साथ पोर्टर का काम किया, उनका खाना लेना शुरू किया, उनके साथ लेजनिंग भी किया। हमारे यहाँ के तब एक लोकल ऑफिसर यहाँ के थे, हमारे बरकत निज़ामी साहब, वो यहाँ तहसीलदार साहब थे। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ सब सपोर्ट किया, और हमने इन सारी चीज़ों को अपने आँखों से देखा। और ख़ासकर शायद मुझे वो भी दिन याद है 99 में शायद वर्ल्ड कप के मैचेस भी चलते थे, और जिस दिन इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं जो भी टीम हार जाती थी वो वापस वहाँ से गोले और तेज़ होते थे, और उस तरह का भी माहौल हमने देखा कि शायद उनकी नज़र उस जंग में भी शायद गेम में रहा होगा। 25 साल हो गए, आज जब याद करते हैं उस जंग को तो क्या यादें आती हैं? बस याद यही आता कि शायद तब हमने सोचा भी नहीं था इतना अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। अच्छे दिन की तो बात ही नहीं, क्योंकि रात दिन शिलिंग और बिल्कुल जहाँ है वहीं पे रुकते थे। कहीं घंटों हमने जो है स्कूल्स में रहे, कहीं घंटों हम बंकर्स में रहे, कहीं घंटों हम दूसरों के पास रहे, क्योंकि शदीद फहरा। और उसके बाद जून जुलाई के बाद तो कोई लिमिट भी नहीं रहा, सिविल्स एरिया में भी काफ़ी अटैकिंग बम गिरने शुरू हो गए। 26 जुलाई का वो दिन किस तरह से याद आता है, विजय, कारगिल विजय, क्योंकि अब जो है 25 साल मनाए जा रहे हैं। वो दिन हमें याद है जब टाइगर हिल को कैप्चर कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में एयर फोर्स भी उस पर अटैक कर रही थी, और उस पर हमारा जो आर्टिलरी गन्स भी अटैक कर रहे थे। तो वो पहाड़ पूरा आग की शोले की तरह जल रहा था। मतलब आप अंदाज़ा करें कि एक पहाड़ आग की शोले की तरह 10,000-20,000 फीट इतना दूर से वो शोले नज़र आते थे, तो कितना वहाँ पे जीत हुई तो तब कितनी खुशी थी? ऑब्वियसली लोगों को खुशी हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो जीत हो गई, उसके बाद अमन भी हुआ। और हम वो 99 और आज तक 25 साल में हमने एक आवाज़ भी नहीं सुनी है, इसकी बात और खुशी है। तो लोगों ने सपोर्ट भी किया और खुशी भी किया, और उस जंग को हमने अपने आँखों से देखा। तो बहुत मतलब बुरे दिन थे शुरू में, लेकिन चलो अल्लाह ताला का है कि लोगों का करम है कि आज ये अच्छा दिन मिल रहा है कि आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और हम पिछले 25 साल से कंटिन्यू इस सेलिब्रेशन में हिस्सा ले रहे हैं।
So from those days when Pakistan used to pound shells at their places, at the schools they used to teach, to what has changed in the 25 years. It is the brave hearts, those who have recaptured the Batra Top, those who have recaptured the Tiger Hill, and also those heights of the Tololing that they have recaptured in 1999. The operations that were minutely planned and well executed led India to the victory. India certainly taught a memorable lesson to Pakistan in Kargil. But since then, the army has laid more and more emphasis on combat readiness to challenge any threat coming from across the border. Since 2000, the Kargil Battle School has been the key training ground for the mountain warriors and those who get posted in the hilly terrain to guard the nation's borders from the enemy. We are at the Kargil Battle School where the warriors of the mountains are trained to get the training. This training is for the entire 8 mountain div that is placed here in the Kargil. And the major part remains to be the challenges that the India has faced in 1999, that how to acquire the hills. Right now we are in their field training area where the troops, these mountain warriors, are going to go for the training, and with me will be the instructor who will be explaining us throughout that how this remains to be challenging and also one of the key factors when it comes to guarding the borders in the Kargil sector. This is the point 3 over climbing, that is they are going from 90 degree to 120 degree. These all have been inducted in the Kargil Battle School post 1999 Kargil War, where we have seen that how the Indian Army troops, they saw that how challenging it is to acquire and to recapture those heights that were with India but were illegally occupied by the Pakistani side. And now this drill is beginning. I'll request Sarjeevan to keep showing you the visuals of this drill. Now the directions have been passed and this drill will be done. So they are trained in such a manner at 10,500 degree altitude. You will see the drills. It is just the flash of the seconds that these warriors of the Kargil Battle School, they are trained, battle hardened warriors, that they carry out this drill within no time. And this is being done so that they are trained round the year without even a minute skip, so that they can carry out any drill, any given point, any given time without any of the delays. And now as they move to the other drill, we'll once again go back to instructor. साहब ये पहली ड्रिल थी, अब दूसरी ड्रिल क्या रहेगी, उसमें किस तरह की तैयारी और सिखलाई आपको दी जाती है? सबसे पहले ये बताइए कितने ऑल्टीट्यूड पर जवानों को तैयार किया जाता है? हम जिस ऑल्टीट्यूड पर अभी हैं वहाँ की हाइट है 10,500 फीट। तो ये जरूरी नहीं कोई भी ऑल्टीट्यूड, पहले हमें क्या है जो भी ट्रेनिंग जाता है तो उसको यहाँ के मुताबिक ढालना पड़ता है, तो जो उसको क्या है आगे यहाँ सर्वाइव करने में आसानी मिले। तो दूसरी जो ड्रिल है वो क्या रहेगी? वो रहेगी होलोलिंग हॉरिजॉन्टल बेस। उसमें क्या रहता है? इसमें क्या है, आपको अगर एक स्लोप से दूसरे स्लोप की तरफ डाउन होना तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, नाम है होलोलिंग हॉरिजॉन्टल बेस। So this is the second drill. These are the drills that are part of the course of the Kargil Battle School, where you will see a Jawan, a mountain warrior holding the tricolor. They will be coming from the high to down. This is being done when when they have to travel from one height to the other. These are one of the key challenges that these mountain warriors actually face when they carry out the operations on ground, because if you see from the Tiger Hill to Batra Hill to Tololing, you have seen that these all stretches are really very challenging and there is no plain height that can be seen at any given point of time. And that's why these mountain warriors are trained in such a manner that they can carry out the operations without any delay, without a friction of seconds delay, and to give adversary a befitting reply. Climber, climb up! डबल जुमार का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब स्लोप का ग्रेडियंट 90 से 120 डिग्री का हो या किसी कठिन से कठिन स्लोप के ऊपर हमें क्लाइंब करना हो। इसको क्लाइंब करने का तरीका, सबसे पहले हम रोप की मदद से मजबूत बेस तैयार करेंगे और जो क्लाइंबर है
उसको जो जुमार है उसको अपने सीट हार्नेस में एंकर करेगा और जो फिक्स रोप किया गया है उसमें एंकर करके नीचे से ऊपर की तरफ क्लाइंब करता है। इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपने दोनों जुमार को एक साथ अनलॉक नहीं करना है। अगर आप दोनों जुमार को अनलॉक करोगे तो आप फॉल हो सकते हो। तो अब अगली कार्रवाई क्योंकि इसके साथ ही जुड़ती है तो उसको भी शुरू कर देते हैं। उसके लिए आप बताइए कौन सी कार्रवाई है, फिर उसके बाद इसकी शुरुआत करते हैं। जो उसके बाद नेक्स्ट कार्रवाई है उसे रैपलिंग कहते हैं। रैपलिंग का मतलब है कि आपने किसी स्लोप से जल्दी नीचे की तरफ डाउन। इसके लिए आदेश अगर आप दे दें। रैपलर रेडी, रैपलर डाउन। तो जी अब इस कार्रवाई को जो है आप थोड़ा डिटेल में बता पाएं क्योंकि काफ़ी सफुर्ती से जो है ये रैपलर नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल, जो रैपलिंग की कार्रवाई नीचे आने की कार्रवाई, इसमें सबसे पहले आपने अपने बॉडी वेट को 45 डिग्री के एंगल में रखना है। और जो आपका बायां हाथ है उसको गाइड हैंड आगे रहेगा, आपका जो ब्रेकिंग हैंड है वो पीछे की तरफ रहेगा। इसमें आपका कहीं पे भी क्या है रुक सकते हैं, तो इसमें आपका बॉडी वेट पीछे होने और अपने दोनों कंधों से दाएं बाएं देखते हुए नीचे तरफ डाउन होना है। अब आप ये बताइए कि क्या किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले जो क्लाइंबर है उसमें 2 रोप को फिक्स करके हम क्या करते हैं उसको ओवरलैप करते हैं और उसको अपनी कमर पर ले आते हैं। जो आपका कैजुअलिटी है उसको अपने पीठ पर या एंकर करके धीरे धीरे करके नीचे की तरफ डाउन होंगे। आप देख रहे होंगे आप सामने। तो ये कार्रवाई जो है आपके इसमें सिखाई जाती है। साल पूरे में क्या शेड्यूल रहता है क्योंकि सर्दियां भी हैं गर्मियां भी हैं, किस तरह से सिखलाई जो है जवानों को पूरे साल भर दी जाती है? यहाँ पर तो पहले मौसम के मार है। फर्स्ट जब तक मार्च और अप्रैल तक हमारे यहाँ बर्फ़ रहती है, उससे पहले हम क्या है जब तक हमारे पास बर्फ़ रहेगी तो हम उसमें स्कीइंग की ट्रेनिंग देते हैं। और ART एक चीज़ ये वो है कि जब आपका कोई साथी एवलांच के अंदर फंस गया है तो आपने उसको किस प्रकार से रेस्क्यू करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट को आपकी ज़रूरत है। आपको अगर उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो किसी भी जो आपका साथी एवलांच के अंदर फंस गया तो उसको बचा नहीं पाओगे। तो इसलिए विंटर के समय ART की ट्रेनिंग देते हैं और स्कीइंग की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे ही समर शुरू हो जाता है तो हम उनको PIT यानी प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में सिखलाई देते हैं। उसमें एक रॉकक्राफ्ट ट्रेनिंग एरिया शामिल है। So this is the Kargil Battle School, the first front where they go up to the hills, they come down from the hills, they do everything that is needed to operate in this hilly terrain. The Kargil War also gave a major lesson to the Indian Army in terms of defense preparedness in the hills. The battle school drills and trains the new trainees to make them battle ready whenever the situation calls for guarding the nation. It has been 25 years for the war in which history was scripted in stone by our brave fallen warriors. India taught a befitting lesson to Pakistan and its army, and since then, Pak hasn't dared to capture an inch of our land. देखो आप किस प्रकार से आप 90 डिग्री के पूरे एंगल में 180 अपने पैरों को करते हुए आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे और हमारे जवान ने क्या कर लिया है, इसको पार कर लिया है। इसमें देख सकते हो आप एक सेफ्टी एंकर रोप है। जब वहाँ पे पहला मेंबर जाता है तो खुद क्या कर देता है, अपने को अनलॉक करके वहाँ पे बिलेयर के लिए खड़ा हो जाता है। जब वो बिलेयर के लिए वहाँ पे खड़ा हो जाएगा तो उसके बाद हम एक एक करके ट्रुप्स के और मेंबर को क्या करते हैं, यहाँ से पार करवाते हैं। India is and will remain indebted to its fallen bravehearts who happily took the bullet and sacrificed their precious lives for Maa Bharati. भारत माता की जय! 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 भारत माता की जय!